گائز بہت دیر سے ہمیں انتظار تھا ہمارے آنریبل چیف گیسٹ ہی از رائٹ ہیئر. تو میں چاہوں گا کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوں اور آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ سر عاطف خان صاحب ہز ایکسلنسی ٹو کم آن دا اسٹیج اینڈ شیئر اے فیو ورڈز ود اس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا اتنی ماشاءاللہ ویل اٹینڈڈ سیریمنی ہے، آپ کی ساروں کی پارٹیسپیشن کا، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آئی ٹی میں جتنا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور جتنی تیزی سے ہو رہا ہے اور لوگوں کی لائفز چینج ہو رہی ہیں، گورنمنٹس کا جو طریقہ کار ہے وہ چینج ہو رہا ہے، جابس چینج ہو رہی ہیں، رولز چینج ہو رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایک ایفرٹ ہے ہمارے پروونس کی، ہمارے گورنمنٹ کی، تو وہ بھی اسی حساب سے چلنا چاہیے، ورنہ ہم تو ویسے بھی دنیا سے بہت سی چیزوں میں پیچھے رہ گئے. تو اگر ہم اس میں کمپیٹ نہ کیا اور آگے نہ بڑھے تو خدا نخواستہ ہم بہت زیادہ پیچھے رہ جائیں گے. اس آج کے پروگرام میں خواتین کم ہیں لیکن پھر بھی بولنے کی آواز بہت زیادہ آ رہی ہے. پتہ نہیں یہ بندے بہت زیادہ بولنا شروع ہو گئے ہیں یا کیا ہو گیا ہے. تو اگر کائنڈلی تھوڑی سی توجہ اس طرف ہو جائے تو جو سننا چاہتے ہیں ان کو بھی آسانی ہو جائے گی. تو آئی ٹی کے رول پہ یا آئی ٹی میں جو گورنمنٹ کا رول ہے، آپ نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً ماشاءاللہ سے ڈپارٹمنٹ بڑا ایکٹیولی کام کر رہا ہے. بجٹس آپ نے دیکھے کہ کتنے انکریز ہوئے ہیں آئی ٹی کے شعبے میں گورنمنٹ کی طرف سے. آئی ٹی بورڈ ماشاءاللہ سے اچھا کام کر رہا ہے. یونیورسٹیز کو ہم اپنے ساتھ انوالو کر رہے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، کیونکہ اسی سے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. ابھی اس سے پہلے بات ہوئی ایکو سسٹم کی. میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ ایکو سسٹم نہیں بنائیں گے اس وقت تک آپ جو صحیح طریقے سے چینج لانا چاہتے ہیں یا آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے. جب تک ایکو سسٹم نہیں ہوگا اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا اپنا رول ہے، اس میں اکیڈیمیا کا، یونیورسٹیز کا اپنا رول ہے، گورنمنٹ کا اپنا رول ہے، اور پھر اسپیشلی آپ جیسی یوتھ جو کہ ہمارے لیے ایک ایسٹ ہے. جہاں بھی آپ جاتے ہیں دنیا میں وہ اس یوتھ کو ایک ایسٹ سمجھتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. پاپولیشن زیادہ ہو گئی ہے لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے، صحیح طریقے سے چینلائز کیا جائے، صحیح طریقے سے ان کو گائیڈنس دی جائے، چاہے وہ انٹرنشپ پروگرام ہو، چاہے وہ باقی ڈیجیٹل سکلز ہوں، تو اگر ان کو آپ صحیح انشاءاللہ اگر گائیڈنس دے دیں اور چینلائز کر دیں تو یہی لوگ جو سارے کہہ رہے ہیں کہ جی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایسٹ ثابت ہوگا انشاءاللہ. بہت سے ملکوں میں ایجنگ ان کی پاپولیشن ہے، ان کے پاس یوتھ ہی نہیں ہے. وہ موسٹلی اس ایج پہ جا رہے ہیں جہاں پہ لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اتنے لوگ یوتھ کی پاپولیشن اوپر نہیں آ رہی، کیونکہ کرنا تو سب کچھ یوتھ نے ہے. آنے والا دور بھی آپ کا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے موجودہ بھی انہی کا ہے. پرانے لوگوں نے تو جو کرنا تھا کر لیا.
20 साल पहले, 50 साल पहले अच्छा किया, बुरा किया, वो गुजर गया। हमने आगे की तरफ सोचना है, और उसमें अगर मैं केपी गवर्नमेंट के हवाले से कहूँ कि जो जो हमने इंटरवेंशन की है, ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो कि 4 बिलियन का एक अप्रूव हो गया है, 3 बिलियन का एक और है, 1 बिलियन का एक और है, ये टोटल 8 अरब रुपए बनते हैं, जो कि पाकिस्तान में किसी सूबे में या हमारे सूबे की हिस्ट्री में इतना ट्रेनिंग पे, आईटी की ट्रेनिंग पे तवज्जो नहीं दी गई। और हम इंशाल्लाह इस पे तवज्जो दे रहे हैं, और जो बेस्ट ट्रेनिंग्स हो सकती हैं दुनिया में वो हम करा रहे हैं। मतलब जो आने वाले आइंदा 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए जो दुनिया में जिसकी रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। और उसी से ही मैं आपको मिसाल देता हूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमारा हमसाया मुल्क जो है इंडिया काफ़ी चीज़ों में हमसे आगे निकल गया है, लेकिन मुझे खुसूसन फ़िक्र ये है कि आने वाला दौर आईटी का है, और वो आईटी में हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। तो जिस चीज़ का दौर आ रहा है उसमें वो आगे निकल गए तो हमारा और उनका गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने जितने भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे गवर्नमेंट के, आज हमने एक कैबिनेट को, आपको खुशी होगी सुन के कि केपी गवर्नमेंट पहला प्रोविंस होगा इंशाल्लाह इस मुल्क का जो कि टोटली ई गवर्नेंस की तरफ जा रहा है। और सालों में नहीं, इंशाल्लाह 27 को उसका पहला ट्रांच जो है वो इंशाल्लाह ताला वो लॉन्च हो रहा है। और हमने आज पहली दफ़ा अपनी कैबिनेट को पूरी एक ट्रेनिंग सेशन, अवेयरनेस सेशन कराया उसका। उसमें बहुत एक्सेसिबिलिटी थी लोगों की कि अच्छी बात है, चीज़ों को डिजिटलाइज होना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके, ताकि अकाउंटेबिलिटी हो सके, ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके। तो पहला इंशाल्लाह सुबह होगा, इसी मंथ के एंड में लॉन्च हो जाएगा। दूसरा जो सिटीजन फैसिलिटेशन का है कि लोग तंग होते हैं सरकारी दफ्तरों में जा के, किसी को बोलो सरकारी दफ्तर में काम है, वो बस कहते हैं कि यार फिर वही दफ्तरों में जाएंगे, माहौल ठीक नहीं होगा, लोग रिश्वत मांगेंगे, काम नहीं करेंगे। तो सिटीजन फैसिलिटेशन का सॉफ्टवेयर रेडी हो गया है। इंशाल्लाह अनकरीब एक और सेरेमनी करेंगे जिसमें उसकी लॉन्चिंग होगी, और आप मोबाइल ऐप के ज़रिए अपनी जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं, फ़िलहाल 5 डिपार्टमेंट और 19 सर्विसेज होंगी, और फिर अल्टीमेटली 32 डिपार्टमेंट्स और 177 सर्विसेज ऑनलाइन हो जाएंगी। आपको दफ्तरों में जाके ख्वार होने की ज़रूरत नहीं होगी, रिश्वतें देने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने आज भी कैबिनेट मीटिंग में यही कहा कि हमें अभी सर्विस डिलीवरी की तरफ जाना चाहिए। बहुत स्कूल बन गए, बहुत यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं, बहुत रोड्स बन गए हैं। हमें अभी जो मौजूदा सेटअप है इसको बेहतर करना है कि यूनिवर्सिटीज़ तो 32 हो गई हैं, लेकिन उसका आउटपुट क्या है? स्कूल्स तो 30,000 हो गए हैं, लेकिन उसका आउटपुट क्या है? दफ्तर तो बहुत बन गए हैं सरकारी, लेकिन उसमें आया लोगों को तकलीफ मिलती है या उनके लिए आसानी पैदा होती है? तो हमें अपना फोकस इंशाल्लाह सारा इस तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा, और प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह प्राइवेट सेक्टर ही लीड करता है, वही जॉब्स देता है, वही गवर्नमेंट को रेवेन्यू देता है। हमारे यहाँ सिर्फ ये क्या है, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। क्यों सरकारी नौकरी? क्योंकि वहाँ पे काम नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे बस टाइम के मुताबिक तरक्की होती रहेगी। लेकिन जो भी मोस्टली दुनिया में कॉम्पिटेंट लोग होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं, क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना काम करेंगे, आप उसी हिसाब से ऊपर जाएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना, अपनी यूथ को, अपनी जो यूथ
फोर्स है हमारी, इसको ट्रेन करना, इसको इक्विप करना, इसको आगे लेके आना, ताकि अपने लिए भी काम कर सकें और इस सूबे और इस मुल्क के लिए भी काम कर सकें इंशाल्लाह। हमने जो प्लान किया है सिर्फ आप लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि मैं तो अब उस एज ब्रैकेट से निकल गया हूं कि मैं अभी आईटी में कुछ सीखूंगा, आप ही लोगों ने सीखना है, आप ही लोगों ने उससे फ़ायदा उठाना है। तकरीबन कोई 1 लाख लोगों को ट्रेन करने का प्लान है, बजट भी हो गया है, 3 कैटेगरीज की ट्रेनिंग होंगी। अब आप अपने आप को किस कैटेगरी में प्लेस करते हैं और उससे क्या फ़ायदा उठाते हैं, तो इंशाल्लाह जो हमारी एस्टिमेट हैं, अगर 50,000 भी एक एवरेज सैलरी लगा लें 1 लाख लोगों की, अपार्ट फ्रॉम जो अपना बिजनेस शुरू करेंगे या कोई बाहर जाएंगे या जो करेंगे, यहाँ पे भी अगर 50,000 एवरेज सैलरी भी लगा लें एक बंदे की, तो अगर आप 1 लाख से उसको मल्टीप्लाई करें, ये मंथली कितनी एक जनरेशन है, एक वेल्थ जनरेशन है या इनकम है, और फिर साल के हिसाब से लगा लें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है, आप लोगों से उम्मीद है, यूथ से उम्मीद है, और हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन आपने खुद आके काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो पुराना ज़माना गया कि जी तैयार आपको कोई चीज़ मिल जाती थी, अभी तैयार कुछ नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि आने वाले दौर में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आज के इवेंट के हवाले से एक केपी का सुपर ऐप है, जो कि एक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में आपने देखा होगा, कोई एक डिपार्टमेंट कभी ऐप लॉन्च करता है, कभी दूसरा लॉन्च करता है, कभी तीसरा लॉन्च करता है, कुछ अरसे बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो हमने एक केपी का सुपर ऐप लॉन्च किया है, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऐप्स होंगे वो इसी ऐप के अंदर होंगे, स्टैंडर्डाइज होंगे, और जो उसको यूज़ करना चाहता है, जो डाउनलोड करना चाहता है, उसको फैसिलिटी होगी। इसके अलावा सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि अगेन एक बहुत एक अच्छी चीज़ है, काफ़ी मेहनत की है इस पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने। पूरा रिकॉर्ड होगा हर एक पेशेंट का, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पहले क्या बीमारी थी, क्या इलाज हुआ, ह्यूमन रिसोर्स का पूरा रिकॉर्ड होगा, इन्वेंट्री का सारा रिकॉर्ड होगा। तो चीज़ें काफ़ी इससे इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो उम्मीद रखें, एक्साइटिंग टाइम आ रहा है आप लोगों के लिए, यूथ के लिए, इस सूबे के लिए और इस मुल्क के लिए इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच।